Good morning. Okay, welcome back to yet another class of human reproduction. तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं क्या किया था हमने इन दी लास्ट क्लास. ठीक है, इन दी लास्ट क्लास वी एंडेड अप एट अ टॉपिक कॉल्ड एज फेट ऑफ द जर्म लेयर्स. हमने गैस्ट्रुलेशन कर दिया, हमने जर्म लेयर्स से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज ओरिजिनेट करवा दिए. ठीक है, नाउ स्लोली एंड स्टेडीली व्हाट वी आर, द एम्ब्रियो इज स्टार्टिंग टू डेवलप. करेक्ट, बट एम्ब्रियो अगर डेवलप हो रहा है, आई टोल्ड यू there is a difference between these two words, embryo and fetus. हम कब तक उसको embryo बोलेंगे? Only up to 8 weeks, approximately 2 months तक हम उसको embryo बोलेंगे. Post that we will call it as a fetus. Correct? So now for the growth of the fetus, what is most important? जैसे हम human beings में बात करते हैं that we have internal development. Correct? So internal development में specifically the fetus is completely dependent on the mother for all sort of nutrition, all sort of other factors with respect to protection, nutrition, immunity. ये सब मदर, जैसी मदर की हेल्थ होगी स्पेसिफिकली वैसे ही बच्चे की हेल्थ डेवलप होगी. Correct? So India also has taken a lot of reforms, a lot of measures to take this particular thing, मतलब technically maternal health as a consideration. Correct? Maternal health एक बहुत ही important factor है because maternal health पे ही fetal health dependent है. Right? Now in India specifically we have so many other characteristic features जो एक pregnant lady goes through specifically. जो 9 months का जो gestation period, 9 months 10 days exactly, उसका जो gestation period है, that period is considered to be the most delicate part where the female is fed with all sort of nutrition because अब the female has to take up the nutrition for both two individuals. Right? अब ऐसा है, condition ऐसा है बेटा कि जो female है she has to feed herself and from her blood, from her nutrition, a part of the nutrition is going to be taken by the fetus or the embryo. Correct? तो जो भी मदर कंज्यूम करेगी उसका छोटा सा अमाउंट, छोटा सा proportion will definitely get into the fetus. Be it be any type of food, nutritional rich food, or it can be any type of drugs or alcohol. ठीक है, इसीलिए फीमेल की जो हम फिजियोलॉजी बोलते हैं that is very very delicate and it is vulnerable to a lot of damage. इसलिए स्पेसिफिकली जितना ड्रग्स और जितना टोबैको, जितना अल्कोहलिज्म मेल को अफेक्ट नहीं करता है, उससे कई गुना ज्यादा वो फीमेल को अफेक्ट करता है बिकॉज एंटायरली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड. करेक्ट? सो today's agenda or the topic of discussion for today, we are going to discuss a lot of things, right? So topic of discussion today is placentation and embryonic development. Now placentation is a very important feature or specifically a very important process of human embryonic development. ठीक है, अब ये placentation है क्या? Placentation is nothing but formation of placenta. ठीक है, now placenta है क्या है? ये specific word क्या है? You might have heard placenta on and again. आपने plant में भी placenta सुना होगा, है ना? When you studied the structure of the ovule, तो वहाँ पे structure of the ovary and ovule अगर आपने पढ़ा है, वहाँ पे भी आपने placenta पढ़ा होगा. So what is this placenta associated with? ठीक है, so we'll talk about that. अब एक क्या है बेसिकली, पहले तो हम बेसिकली लिख लेते हैं कि प्लेसेंटा है क्या. ठीक है, सम बेसिक फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेसेंटा. Now we know this particular factor that there is a strong feto-maternal connection which is established between the mother and the fetus, right? And that feto-maternal connection is due to the formation of the placenta. ठीक है, अब एक ऐसा एक टिश्यू है which is derived out of two generations. Two generation मतलब एक मदर का जनरेशन है और एक फीटस का जनरेशन है. राइट? सो हिस्टोलॉजिकली अगर मैं एनाटॉमिकली देखूं, हिस्टोलॉजिकली देखूं तो प्लेसेंटा में दो टाइप के टिश्यूज हैं, दो जेनरेशंस के टिश्यूज हैं.
ठीक है, 2 generations. So partly the placenta is derived from the mother, partly it is derived from the fetus. So it establishes a very strong feto-maternal connection. ठीक है, so generally it is said that after the development of the placenta, if the lady wants to abort the child, she is not allowed according to the law, है ना. इंडियन गवर्नमेंट का ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है एमटीपी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो टाइम है दैट इज एब्सोल्युटली फॉर 3 months. पोस्ट 3 month कैसा भी बच्चा हो, उस लेडी को उस बच्चे को उस लेडी, मेरी माय हिंदी इज वेरी वीक, उस लेडी को उस बच्चे को शी विल हैव टू गिव राइज टू दैट पर्टिकुलर, शी विल हैव टू गिव बर्थ टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. ठीक है, सो यहाँ पे something which is very important is 3 months. ठीक है, क्या होता है, what is this 3 month associated with? 3 महीने तक the placenta is completely developed. Post when the placenta is completely developed, I told you the blood connection, the feto-maternal blood connection is very strongly established. अगर 3 महीने के बाद अगर अबॉर्शन करवाते हैं तो that will be a very dangerous situation for the mother also. ठीक है, और लीगली तो वो करवा नहीं सकते, बट बाय एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस ऐसे कुछ नेचुरली अबॉर्ट चाइल्ड अबॉर्ट हो गया, सो इट माइट बी एक्सट्रीमली फेटल फॉर द मदर आल्सो. ठीक है, सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट प्लेसेंटा एंड द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लेसेंटा. अगर प्लेसेंटा की कलर की बात करूं तो इट अपीयर्स टू बी डार्क पर्पलिश टू ब्लूइश इन कलर. ठीक है, अब पर्पलिश ब्लूइश कलर, ये जो कलर है दैट इज ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई. आई टोल्ड यू इट इज नथिंग बट अ स्मॉल पैरासाइट ग्रोइंग इन द मदर्स बॉडी. ठीक है, अब देखो आपने ये सुना होगा कि जनरली ये जो हम बोलते हैं ना मॉर्निंग सिकनेस, हम जनरली बच्चों को ऐसे मजाक में बोल देते हैं, कोई बच्चे सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि सर सुबह सुबह आ जाते हैं, ऐसे ही उठ के आ जाते हैं बिना ब्रश किए, है ना, क्लास में बैठे, 7 बजे की क्लास होगी, 8 बजे की क्लास में ऐसे बैठे रहेंगे एंड फिर बहाना मारेंगे कि उल्टी आ रही है, तो मजाक करते हैं, हाँ वाह वाह गुड न्यूज. सो ये उल्टी आना, दिस प्रॉपर्टी भी नहीं बोल सकता हूँ, व्हाट इज दैट सिम्टम, है ना, नॉजियाटिक सिम्टम. द लेडी सफर्स फ्रॉम दिस कांस्टेंट नॉजिया, या फिर उसको उल्टियां आती रहती है, मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं जिसको हम. ठीक है, वेयर एब्सोल्युटली बॉयज आर एब्सोल्युटली लकी, they do not experience morning sickness unless and until they have drunk the entire night. तब जाकर सुबह उठकर उल्टी होती है, या फिर रात भर अगर कचरा खाया है तो सुबह उल्टी होगी. दैट इज नॉट मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह उठेंगे तो चक्कर आएगी एंड यू विल फील अ लिटिल मोर प्यूकिश. नॉजिया जिसको हम बोलते हैं, नॉजिया रेफरिंग टू द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. तो इसकी देयर आर two specific क्या बोलते हैं उसको, two specific theory या hypothesis which a lot of scientists believe. पहला theory है that the growing fetus is just like a parasite, right? जैसे हम हमको parasite infection होती है, right? So on similar lines we suffer from the conditions of nausea. So a lot of scientists believe that the growing fetus is just like a parasite, and because of that ये morning sickness like condition हो रही है. ठीक है, so that is one particular notion which has been given regarding morning sickness. ठीक है, so I was supposed to show you a documentary with respect to the fetal development, but उसमें ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है. ठीक है, so in which ways that is not a part of your syllabus, so you don't have to worry about that. करेक्ट. और इंडिकेशन क्या होती है जैसे उल्टी आ गई? पहले के जमाने में तो ऐसे होता था कि उल्टी आती है और फिर वो बोलती है कि सांस बोलती है कि अरे उल्टी आ रही है, तो ऐसे नस पकड़ के चेक करती है, देन शी सेज चलो खुशियां मनाओ, पेड़े बांटो, राइट? सो दैट ये पहले के जमाने में होता था. Nowadays you also can check the pregnancy prior to 3 months. That I told you with respect to those pregnancy detection kits called as HCG, है ना. और पहला इंडिकेशन क्या है? If the lady misses her normal menstrual periods, अगर लेडी पीरियड्स को मिस कर देती है, so ये इंडिकेशन है. अभी कॉन्स्टेंटली कभी कुछ गलती हुई होगी, तभी तो जाकर वो प्रेगनेंसी टेस्ट
प्रेगनेंसी किट से वो चेक करेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, right? And which hormone is basically checked in that pregnancy detection kit? That I told you is HCG. मैंने आपको ये भी बताया था कि HCG का अभी तक कोई काम नहीं है। HCG का काम कौन कर रहा है? HCG का काम कर रहा है PRL. So HCG का because it is not being used and because it is being produced by the syncytiotrophoblasts, if you remember. So syncytiotrophoblasts अगर produce कर रहा है but use में नहीं आ रहा तो वो यूरिन से निकल जाता है। And there's those small amount, trace amount of HCG is being detected in that pregnancy detection kit. ठीक है? So a lot of things which we have to talk about placenta. A very important feature. चाइना में तो placenta को भी खाया जाता है, right? It is a rich delicacy there. Unborn fetuses are eaten there. You really can't keep blaspheming about, you know, Chinese people. अब वो है ऐसे वो है, मतलब they are speck of evil mentality, you know. भूख जो है, भूख को सेटल डाउन करने के लिए कुछ भी खाया जा सकता है। ये हमको चाइनीज लोगों से सीखना चाहिए। Do not learn anything about that unless and until you turn out to be Bear Grylls. Anyways, come back on that particular point. So बोलने का मतलब ये है, पहले के ज़माने में ये भी करते थे प्लेसेंटा को, जो हम प्लेसेंटा को प्रिजर्व करके रखते थे, बिकॉज a lot of people used to consider that as lucky. ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को बहुत सारे लोग प्रिजर्व करके रखते हैं ना, ये सब चीज़ें बहुत लकी माना जाता है। एनी व्हिच वेज ये सब इट इज नोवेयर रिलेटेड टू साइंस, राइट? सो I told you it is a small disc shaped tissue which is in close contact. डिस्क शेप टिश्यू है, एक सरफेस जो है वो मेटरनल साइड पे है, दूसरा सरफेस वो फीटल साइड पे है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ प्लेसेंटा एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, सो पहले चीज तो हमको याद रखना है दैट प्लेसेंटा इज कंप्लीटली डेवलप्ड विदिन, प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप्ड कब तक हो जाता है बेटा? इट इज कंप्लीटली डेवलप्ड विदिन by 3 months. मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपका प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डेवलप बाय द फर्स्ट 3 months। ठीक है, एंड यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट दैट इट इज अ डिस्क शेप्ड टिश्यू। इट इज अ डिस्क शेप्ड टिश्यू formed out of 2 generations. दो अलग अलग जनरेशन, ठीक है, दो अलग अलग टेक्निकली दो अलग अलग जेनेटिक कंपोजिशन के लोग हैं। मदर और फीटस का जो ग्रोइंग फीटस है उसका जेनेटिक कंपोजिशन इज नॉट एग्जैक्टली द सेम, राइट? सो दो अलग अलग इंडिविजुअल से बना हुआ एक यूनानिमस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू है। ठीक है, so it's a disc shaped tissue formed out of 2 generation. ठीक है, 2 generation कौन है? मदर एंड द फीटस। Apart from that, you also have to talk about that. So histologically, it has tissues from the 2 generations, right? So in mammals, अगर मैं बात करूँ specifically, हमने बात किया था, if you remember, the 4 extra embryonic membrane, out of which chorion is one of the most important part. ठीक है, chorion is associated with the formation of the placenta. मैंने आपको ये एक चीज बताया था कि decidua, right? So decidua basalis forms the part of the maternal placenta. हमने एक पिछले लेक्चर में बात किया था, पिछले एपिसोड में बात किया था, right? So maternal side से decidua and fetal side से chorion. These 2 hallmark tissue are associated with the formation of the placenta. अब इसके अलावा भी बहुत सारे other tissues are associated. We'll talk about that. But 2 important tissues which are associated, that is chorion and the other is decidua. Which decidua? Decidua basalis. Is that very clear? Okay, so specifically जब अगर मैं ये बात करूं बेटा कि out of 2 generations, now let's go ahead and talk about the formation. अब human में, in mammals specifically, mammals में the placenta is called as chorioallantoic placenta. In mammals, the placenta is called as chorioallantoic placenta.
Okay, क्यों chorioallantoic placenta? Because in most of the mammals the placenta is associated. Placenta में chorion का भी involvement है, allantois का भी involvement है. But humans में we spoke about that कि allantois forms the part of the umbilical cord. It is not associated with the placenta. वो placenta तक नहीं पहुंचता. Umbilical cord जो है that's a very comparatively long cord-like structure, right? So it forms the part of the umbilical cord, but not the part of the placenta. That is in the case of humans. But अगर मैं other mammals की बात करूँ, dogs, cats, giraffes इनकी बात करूँ, तो in that particular context, the placenta is also associated with placenta में chorion भी है और allantois भी है. So hence it is called as a chorioallantoic placenta. ठीक है, तो but specifically in humans I told you allantois forms the part of umbilical cord. So in humans only chorion is associated. ठीक है, in human only chorion is associated. ठीक है, तो हम इसको कोरियोनिक प्लेसेंटा बोल सकते हैं. बट एक और चीज ये है, ये जो कोरियोनिक विलाई है इन ह्यूमंस, द कोरियोनिक विलाई, okay, I told you chorionic villi is associated to form strong blood connections, correct? So ये chorionic villi जो है syncytiotrophoblasts में there are spaces which develops called as lacunae. ठीक है, ये छोटे छोटे स्पेसेस के अंदर ब्लड फिल हो जाता है. किसका ब्लड? मैटरनल ब्लड फिल हो जाता है. ठीक है, और ये लकूने के अंदर ये विलाय फॉर्म्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट. सो ये जो विलाय है, कोरियोनिक विलाय जो है, दे एब्सोल्युटली एंगॉर्ज देमसेल्फ, वो डूब जाते हैं, दे आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड into the blood. They completely engorged into the blood which is filled in the lacunae. और lacunae कहाँ पे है? In the syncytiotrophoblasts. Correct? Space is in the syncytiotrophoblasts. So since the chorionic villi is engorged, chorionic villi is engorged in the blood-filled cavities. In the blood-filled cavities. किसका blood है ये? मदर का blood है. करेक्ट. फीटस का तो ब्लड आएगा ही नहीं ना बच्चा, है ना. डेफिनेटली मदर का ब्लड है. फीटस का ब्लड इज स्पेसिफिकली फीटस का तो ब्लड एंजियोजेनेसिस इज स्लोली एंड स्टेडीली टेकिंग प्लेस. इज दैट राइट? एंजियोजेनेसिस वी स्पोक अबाउट दैट आल्सो. एंजियोजेनेसिस फर्स्ट स्टार्ट्स इन द योक सैक. 14 to 15 डेज में भी योक सैक में फॉर्म होता है, तो आउटसाइड द बॉडी, उसके बाद इनसाइड द बॉडी. करेक्ट. सो coming back, chorionic villi is engorged in the blood-filled cavity called lacunae. And hence, since it is filled in the blood, since it is engorged in the blood, we call such a placenta. And that is why we in humans we call it as a hemo. Hemo का मतलब blood है बेटा. Hemochorial placenta. तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है आपको. ध्यान देने की बात ये है दैट इफ दे आस्क यू इन द क्वेश्चन कि मैमल्स में कौन सा टाइप का प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है, सो इट इज कोरियोएलेंटोइक प्लेसेंटा. वी आर आल्सो मैमल बट वी आर एक्सेप्शन. वी आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट डेवलप्ड मैमल्स. करेक्ट. सो हम चार पैर पे नहीं चलते, है ना, ना ही हम घास खाते हैं. सो वी आर कंपैरेटिवली द मोस्ट डेवलप्ड क्रीचर. सो अगर मैमल्स पूछा है तो कोरियोएलेंटोइक प्लेसेंटा. अगर ह्यूमन स्पेसिफिकली पूछा है, तो इट इज कोरियोएलेंटोइक प्लेसेंटा. व्हाई कोरियोएलेंटोइक प्लेसेंटा? आई विल टेल यू द रीजन हियर. कोरियोएलेंट, और माय मिस्टेक, अगर मैंने कोरियोएलेंटिक बोला गलत हो गया है, माय मिस्टेक. अगर ह्यूमंस की बात हो रही है बेटा, सो इट इज हीमोकोरियल प्लेसेंटा. ठीक है, हीमो रेफर्स टू ब्लड, कोरियल रेफर्स टू कोरियन. Is that very clear? So this is what a few features which we need to associate, है ना. और प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है बेटा. तो फीटस की डिलीवरी के बाद there is something called a secondary delivery and that is referred to as placenta. That is referred to as delivery of the placenta. Is that right? So इतने चीजें आपको याद रखनी है with respect to the placenta, hemochorial placenta. ठीक है. Now let's go ahead and talk about the histological association. Let's talk about the histology of placenta.
ठीक है. सो हिस्टोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम फीटल साइड. लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम दी फीटल साइड. कौन से टिश्यू से एसोसिएटेड है? ओके, फ्रॉम दी फीटल साइड. सो डेफिनेटली प्लेसेंटा से ब्लड कांटेक्ट है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड कांटेक्ट है, थ्रू आउट दी ब्लड कांटेक्ट है, तो ब्लड वेसल्स में होते हैं एंडोथेलियम, करेक्ट. सो द फर्स्ट फ्रॉम द फीटल साइड, द फर्स्ट टिश्यू इज द एंडोथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंडोथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये सबसे पहला टिश्यू है, ठीक है. उसके बाद जो एसोसिएटेड है दैट इज mesenchyme. If you remember what is mesenchyme, mesenchyme is nothing but the mesenchyme is the mesodermal band, correct? Mesodermal band between the amnion and the chorion specifically, ठीक है. So mesenchyme. उसके बाद थर्ड जो टिश्यू है दैट इज your cytotrophoblast. Cytotrophoblast, and post that you have your syncytotrophoblast. क्या है syncytotrophoblast के बाद? syncytotrophoblast के बाहर क्या होगा? decidua, correct? So the fifth tissue is decidua, specifically decidua basalis. ठीक है. So all these 5 histological tissues are associated for the formation of the placenta. Okay, very important feature is that कि वो 3 महीने में डेवलप होके कंप्लीट हो जाता है. And these are the histological units or histological type of tissue which is associated with the formation of the placenta from the fetal side. अगर maternal side से पूछा तो सबसे पहले decidua आएगा बेटा, उसके बाद आएगा syncytotrophoblast, उसके बाद आएगा cytotrophoblast, उसके बाद आएगा mesenchyme, उसके बाद आएगा. So it is for your correct understanding and from the fetal side we have. ठीक है. So specifically अगर ये सारे टिश्यूज है, अब इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि प्लेसेंटा से हम बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. सो न्यूट्रिशन हो, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, एवरीथिंग व्हिच मदर कंज्यूम्स दैट गोज इनटू द फीटस. सो डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे हो रहा है. ओके, अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स थिंक कि मदर का ही ब्लड फीटस को जा रहा है. ऐसा नहीं है बेटा. फीटस का अलग ब्लड ग्रुप हो सकता है, मदर का अलग ब्लड ग्रुप हो सकता है ना. मदर एंड फीटस दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ टिश्यू, डिफरेंट सेट ऑफ सर्कुलेटरी सर्किट्स, करेक्ट. फीटस का भी हार्ट डेवलप हो रहा है बट फीटस में लंग्स डेवलप नहीं हुए हैं अभी तक, ठीक है. लंग्स बहुत एंड में स्पेसिफिकली डेवलप होते हैं, फंक्शनल तो वो आफ्टर बर्थ होते हैं, right? So for a mother the fetus is just like a tissue, it is just like a tumor, it is just like a parasite, correct? So in other words mother की जो blood supply system है, maternal blood supply system है, that is just like जैसे आपका liver है for that particular matter, liver को कैसे artery supply oxygenated blood and veins they carry deoxygenated blood, exactly similar to that from the mother. Now let's talk about the blood supply. ठीक है. Now talking about the blood supply to the placenta. Okay. Talking about the blood supply to the placenta, let's talk about the maternal blood. Maternal blood supply. या maternal blood vessels. अगर मैं maternal blood vessels की बात करूं, you have to consider tissue, you have to consider placenta or the fetus as a normal tissue, ठीक है. और उसको अगर mother blood supply कर रही है, so you have the maternal arteriole, you have the maternal arteriole and you have the maternal venule. The maternal arteriole supplies oxygenated blood. Maternal arteriole supplies oxygenated blood. ठीक है. Venule carries deoxygenated blood. Oxygenated blood and deoxygenated blood. ठीक है. अब यहाँ पे please try to understand there is placenta. ये जो है यहाँ पे एक बैरियर है. डू नॉट कंसिडर कि ब्लड दोनों जाकर मिल जाती है. समुंदर नहीं है बेटा, ठीक है. नदी समुंदर में जाकर नहीं मिल रही है. देयर इज एब्सोल्युटली अ बैरियर,
ठीक है, एक स्पेसिफिक बैरियर है. लेट्स गो, लेट मी स्टार्ट एंड लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ अ रफ डायग्राम फॉर दैट. ओके, सो अगर मैं मैटरनल ब्लड वेसल्स की बात करूं बेटा, तो मैटरनल ब्लड वेसल्स यहां से आएंगे आर्टरी, आर्टरियोल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे एंड दे आर लिमिटेड, खत्म. ठीक है, और वेन, वेन्यूल्स, डीऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई, डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके जाएंगे वापस. सो खत्म, यहाँ पे ये मैटरनल पार्ट खत्म हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा चालू होता है फीटल पार्ट. ठीक है, अब फीटल पार्ट में द कंडीशन इज अ लिटिल मोर डिफरेंट. ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि फीटल पार्ट में भी देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. एक ऐसा ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और एक ऐसा ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा. सो आई टोल्ड यू देयर इज अ बैरियर. ये दोनों ब्लड कभी मिक्स नहीं होते. ठीक है, अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स है, दैट न्यूट्रिएंट्स रीचेस द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द फीटस. मतलब स्पेसिफिकली द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द फीटस. सो थोड़ा सा अलग है फीटस में. We have studied this in fetal circulation, but a quick recap of what we did in the chapter circulation. ठीक है, so भी जो भी nutrients हैं, okay, all that nutrients will diffuse from the maternal side into the fetal side. Okay, they will diffuse only the nutrients and the chemical components. They will diffuse into the blood system. ठीक है, यहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं हो रहा, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज हो रहे. ऑन द सिमिलर लाइन जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजनस वेस्ट है या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट, वही एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, ऑल ऑफ दैट विल डिफ्यूज बैक इनटू द मैटरनल ब्लड. सो दिस कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स, मतलब अच्छी चीजें, गुड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर टू द फीटस एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस टू द मदर, दिस कांस्टेंटली इज हैपनिंग. ये तो चीजें नॉर्मल है ना, जैसे आप प्लेसेंटा या फीटस को एक नॉर्मल टिश्यू के जैसे कंसीडर कर लो. ठीक है, तो आप मेटाबॉलिज्म के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स देते हो और जो भी उसका मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको आप वापस वेन्यूल्स में या वेन्स में कैरी करते हो. ठीक है, ऑन सिमिलर लाइंस अब यही है. ओके, मदर से ही एंटीबॉडीज भी पास होती है, मदर से ही अल्कोहल, मदर से ही ड्रग्स पास हो रहे हैं इनटू द फीटस. Is that very clear? So it is extremely important to take care of the maternal health. इंडिया में वो एक RCH प्रोग्राम, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, RCH प्रोग्राम इनिशिएट किया था, where they had included a lot of guidelines कि you know पौष्टिक आहार देना चाहिए मदर को, ना. विद्यालय में इसकी ऐड करती थी, खुले में शौच नहीं करना, ये भी ऐड करती थी, बिकॉज इट इज वेरी अनहाइजीनिक एंड इट बिकम्स अ लिटिल मोर प्रॉब्लमैटिक फॉर द ग्रोइंग फीटस आल्सो. एनीवेज, सो आई एम होपिंग दैट दिस मच इज जो दिमाग में जो डाउट पलता है कि अरे सर फीटस और मदर का ब्लड मिक्स नहीं होता क्या? कभी नहीं होता बेटा. देयर इज एब्सोल्युटली अ स्ट्रांग बैरियर विद रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द मैटरनल साइड. नाउ फीटल साइड में थोड़ा सा अलग है. ठीक है, फीटल साइड में प्लेसेंटा से एसोसिएटेड है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अ स्ट्रॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है, व्हिच इज एसोसिएटेड विद द नेवल. और जो भी फीटस को न्यूट्रिशन जा रहा है दैट गोज थ्रू द अम्बिलिकल वेन्स. ठीक है, here please try to understand it goes from the umbilical veins. Okay, so fetus में the umbilical vein carry oxygenated blood and umbilical artery carry deoxygenated blood. अब चलो इसको कैसे याद करना है और ये ऐसा क्यों है, अजीब सा उल्टा क्यों है, let's go ahead and talk about that. Okay, so before we understand this, we have to understand the definition of arteries and veins, right? What do you mean by an artery? It is a blood vessel which carries blood away from the heart. Correct? और veins क्या है? Which is the blood vessel carrying blood towards the heart. तो अब मैं अब umbilical artery किसका है? umbilical artery का ओनरशिप किसका है? सिर्फ फीटस का है.
यहाँ पे मदर इन्वॉल्व है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरी इज solely the fetal feature, it is a fetal structure. So अगर मैं हार्ट कंसिडर करूंगा तो मैं फीटल हार्ट कंसिडर करूंगा, इज दैट राइट? अब फीटल हार्ट को जो ब्लड जा रहा है, फीटल हार्ट को जो ब्लड, आई टोल्ड यू हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन, सो फीटल हार्ट को जो ब्लड जा रहा है दैट इज कैरीड बाय द वेन्स, और फीटल हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है दैट इज कैरीड बाय द आर्टरीज, मतलब स्पेसिफिकली दोस वेसल्स आर कॉल्ड एज आर्टरीज, राइट? सो डेफिनेटली कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस यहाँ पे लगता है कि ना ही फीटस का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव है, ना ही फीटस का रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव है, राइट? सो इट हैज टू सोलली डेवलप ऑन दी प्लेसेंटा फॉर एवरीथिंग, ठीक है? सो प्लेसेंटा ही फीटस का लंग्स है, प्लेसेंटा ही फीटस का डाइजेस्टिव सिस्टम है, right? So whatever nutrition is being transported, that is being transported into the umbilical veins, ठीक है बेटा? तो umbilical veins जो है यहाँ पे, let's go ahead and write about it, okay? So fetal blood vessels, so fetal blood vessels में दो है बेटा, okay? You have the umbilical veins and you have the umbilical arteries, umbilical vein and umbilical arteries, ठीक है? Now here please understand this, umbilical vein carry deoxygenated blood. Oh, my mistake. Umbilical veins carry oxygenated blood to the fetal heart, और fetal heart से वो different parts of the body में circulate होगा बेटा, ठीक है? So umbilical veins carry oxygenated blood and nutrient rich blood, ठीक है? इसके बेसिस में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इफ यू रिमेंबर CO2, PO2, तो डेफिनेटली दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन, ये चैप्टर गोज बैक टू योर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो आपको पूछ सकते हैं सेट ऑफ वेसल्स दे देंगे और बोलेंगे सबसे ज्यादा PCO2 कहाँ पे है, ओके? तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, अम्बिलिकल वेन्स में PCO2 ज्यादा रहेगा, अम्बिलिकल आर्टरीज में PCO2 ज्यादा रहेगा, अम्बिलिकल आर्टरी में PCO2 ज्यादा रहेगा बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे ओनली दो आर्टरी है जहां पे PCO2 ज्यादा होता है आपके बॉडी में, एक आर्टरी कौन सा है जहां पे PCO2 ज्यादा है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज़ पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स, जहां पे वो ऑक्सीजनेट होंगे। तो दो आर्टरी आपको याद रखना है, वन इज पल्मोनरी आर्टरी एंड वन इज अम्बिलिकल आर्टरी, वेयर द अमाउंट ऑफ PCO2 इज मोर। Are we understanding it? On the similar lines, ऐसे कौन से veins हैं जिसमें PO2 ज्यादा होता है? एक है pulmonary veins and दूसरा है umbilical veins. Is that very clearly understood बेटा? ठीक है? So umbilical veins carry oxygenated blood and nutrient rich blood. So it carries oxygenated blood and it is rich in nutrients. ठीक है? अम्बिलिकल आर्टरीज जो है इट कैरीज deoxygenated blood and it is rich in metabolic wastes. It is rich in metabolic wastes. Okay बेटा, ठीक है? सो नाउ यहाँ पे आपको याद रखना है कि अम्बिलिकल वेन जो है, अम्बिलिकल वेन स्पेसिफिकली हियर यू नीड टू रिमेंबर दैट अम्बिलिकल वेन इज 1 इन नंबर एंड अम्बिलिकल आर्टरी जो है दैट इज 2 इन नंबर। Okay, so specifically this is what you have to associate with the blood supply of, ये मैंने इसीलिए पढ़ाया आपको बिकॉज आपको ये रेस्पिरेशन वाले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा।
ठीक है. सो आई टोल्ड यू दिस, अम्बिलिकल वेन हम और आर्टरी किसकी कंसिडरेशन में करेंगे? वी कंसिडर द फीटल हार्ट. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, लाइट चली गई है, but still I think the board is quite visible to you guys. Okay, so we will not halt our lecture anymore, so we will continue with what we have to do. Okay, so that is what you need to associate, and that is what we need to understand with respect to the placenta. Now let's go ahead and talk about the most important topic with respect to placenta, and that is the functions of the placenta. ठीक है. अब प्लेसेंटा को टेम्पररी ग्लैंड बोल सकता हूं क्या? प्लेसेंटा को मैं टेम्पररी ग्लैंड बोल सकता हूं? बिल्कुल भी बोल सकता हूं. राइट, इन अ चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वी हैव ऑलरेडी डन द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. करेक्ट, प्लेसेंटल हार्मोन्स के बारे में बात किया था और एक लाइन भी बोला था दैट कि प्लेसेंटा के जितने भी हार्मोन्स है दे आर almost similar to those hormones of the pituitary. So टेम्पररी ग्लैंड है, मतलब सिक्रीटरी फंक्शन है, और जितने भी आपकी पिट्यूटरी के हार्मोन्स है उसके एनालॉगस हार्मोन्स यहाँ पे भी रिलीज होते हैं. So let's go ahead and list out those hormones quickly. ओके, सो उससे पहले हम फंक्शंस लिख लेते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन से स्टार्ट करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, फीटल डेवलपमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ऑल ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट थ्रू द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स इट इज एसोसिएटेड with nutritional transport. It is associated with nutritional transport. दूसरा है that it creates a barrier. Okay, it creates a barrier for some large molecular components. ठीक है, some जो छोटे components है जैसे drugs है, alcohol है, ये small molecular components है, they can easily cross the placenta. ठीक है, अब मैंने आपको आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस, बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया में यहाँ पे स्पेसिफिकली वी टेक अ लॉट ऑफ केयर बाय यू नो बाय द एल्डर्स जो है हमारे घर पे, वो बहुत ध्यान रखते हैं मदर के डेवलपमेंट का. बट यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में वेयर भी लोगों के दिमाग में मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा सर चढ़ के बोल रहा है. सो इन दोज कंट्रीज they are very practical on that level, correct, and most of the individuals वहाँ पे drugs are absolutely very common there. So जो मदर अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ड्रग्स कंज्यूम करती है, डायरेक्टली दैट ड्रग इज इन्फ्लुएंस्ड इन द फीटस एंड द फीटस एब्सोल्युटली द नियोनेट इज बोर्न और एडिक्ट. मतलब आई हैव सीन इन वीडियोस, आई हैव सीन नॉट प्रैक्टिकली, आई हैव सीन जो बच्चा पैदा होता है वो ऐसे शिवर करता है, लिटरली जैसे एक ड्रग एडिक्ट शिवर करता है वैसे ही बच्चा भी शिवर कर रहा है. ठीक है, देयर इज अनदर सिंड्रोम कॉल्ड एज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, FAS. अब फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में there are some teratogenic effect, monster like appearances which arises in the fetus. मतलब एकदम फ्लैट हेड होगा, फ्लैट नोज होगा, मतलब एक्सटेंडेड हेड होगा, फ्लैट नोज होगा, थिक एपिकैंथल फोल्ड्स होंगे. ठीक है, और बच्चे की लिम्स की डेवलपमेंट पार्शियली होगी. मतलब the entire fetal development is absolutely disturbed, right? So वही है कि it basically creates a barrier for a lot of things. अगर मदर कोई डिजीज से अफेक्टेड है तो चांसेस ये है कि बच्चा अफेक्ट ना हो. ठीक है, nowadays तो we also have the such medical facility, such medical treatments where even if the mother is HIV positive, the fetus can be prevented from getting the disease. Is that right? जो vertical transmission हम बात करते हैं, transplacental transmission of the virus, that can be prevented if the mother is put on early medications. Is that right? So on that level, it creates a barrier for all those factors. ठीक है? So certain pathogens जो है शिगेला, ये सब pathogens पास नहीं होते, teratogenic molecules पास नहीं होते, etc. Is that right?
दूसरा और एक कंपोनेंट है इट क्रिएट्स एक्सचेंज, इट इज एसोसिएटेड विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब फीटस का ये लंग्स है, ठीक है, सो इट क्रिएट्स a source for the exchange of gases, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ लंग्स लिख दिया ना कुछ भी, ठीक है, लंग्स में बोल रहा था इसलिए लिख दिया, माय मिस्टेक, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद हार्मोन प्रोडक्शन। अब हार्मोन कौन से हैं, लेट्स गो अहेड एंड लिस्ट आउट, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हमने बात किया था HCG, H human chorionic gonadotropin. Human chorionic gonadotropin is very similar to the gonadotropins, ठीक है, जो पिट्यूटरी की gonadotropins है उससे वो एसोसिएटेड है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो प्रोड्यूसेस HPL, human placental lactogen, this is also called as HCS, human chorionic somatomamotropin, क्या बोला, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमैमोट्रोफिन, ठीक है, मैमोट्रोफिन इज योर PRL प्रोलैक्टिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन अगेन मिल्क प्रोडक्शन, सो दिस इज वेरी सिमिलर टू PRL दैट इज प्रोलैक्टिन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद H ह्यूमन chorionic thyrotropin, very similar to your thyrotropin, okay, similarly HCC which is very similar to human chorionic corticotropin, chorionic corticotropin is similar to ACTH, that is adrenal corticotrophic hormone, ठीक है, सो HCC, HCT, HPL और HCS, ठीक है, HCG है ना, इसके अलावा इट आल्सो प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन, इट आल्सो प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन, इट आल्सो प्रोड्यूसेस एन इंपॉर्टेंट हार्मोन कॉल्ड एज रिलैक्सिन, ठीक है, सो ये सारे पिट्यूटरी के ऑलमोस्ट हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये पिट्यूटरी के सिमिलर हार्मोन्स हैं, and apart from that these are some extra hormones, progesterone, estrogen and relaxin. This progesterone and estrogen is extremely important during the delivery. अभी हम लोग बात करेंगे, जब हम पार्चुलेशन बात करेंगे that time we'll talk about the role of progesterone and estrogen there, ठीक है। relaxin also plays a very important role during the पार्चुलेशन, so ये तीन हार्मोन्स हम पार्चुलेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। रिलैक्सिन तो हमको पता है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है सो दैट द propulsion of the baby through the cervix is effectively possible, ठीक है बेटा, सो ये हमारा हो गया विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोन का प्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी से क्या चीजें हम बात करेंगे कि क्या मदर कोई टाइप की इनेट इम्यूनिटी बच्चे को दे रही है, डेफिनेटली दे रही है, ठीक है, मदर इज ऑल्सो गिविंग सम काइंड ऑफ इम्यूनिटी टू दी, मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी टू दी चाइल्ड, ठीक है। अब मदर, लेट्स टॉक अबाउट दैट, सो नेक्स्ट फंक्शन इज इम्यूनिटी, है ना, तो इम्यूनिटी में वी नो दैट IgG जो है, IgG, ओके, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G, ओके, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, okay, IgM and IgA, IgM and IgA can't cross the placenta due to its large molecular size, because IgM एक पेंटामर है, IgA एक डाइमर है, so ये दोनों क्रॉस नहीं कर पाते। IgG क्रॉस कर पाते हैं, बट उसके एक सब ग्रुप है IgG2 that cannot cross the placenta, but you just have to remember that IgG can cross the placenta. Is that very clear? So that is associated with the functions of placenta. Is that very clear? So इतना आपको याद रखना है with respect to placenta, that is it. इससे अलावा और कुछ भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है with respect to this topic. ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा चीजें है, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं पर्सनली आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इट इज ओके
2-3 मिनट लगेंगे, तो सिर्फ अच्छे से सुन लो because it is extra, okay, not related pertaining to your syllabus. No questions will be asked from the syllabus, but I personally think that you should be knowing these technical terms, okay, because हमको उसका layman term पता है बट हमको उसका टेक्निकल टर्म नहीं पता, तो हम एकदम गाँठी लोगों के जैसे बोलते हैं कि ऐसे नाड़ अटकली होती गढ़िया, इसलिए कॉम्प्लिकेशन था, ठीक है। सो चलो ठीक है, जो जिसको साइंस और जिसको ये सब चीजें नहीं पता वो अगर बोलता है कि बच्चे के गले के अराउंड अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब वो भी नहीं बोलते, वो बोलते कि बच्चे के गले के अराउंड वो हो रहा था, नाड़, जो बच्चे की नाड़ है वो अटक गई थी, तो कितना गंदा लगता है ना सुनने को। सो यू शुड बी नोइंग दैट टेक्निकल टर्म फॉर दैट, है ना। टेक्निकल टर्म क्या है वो हम लोग बात करते हैं। सो अ लिटिल मोर डिसऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू द प्लेसेंटा, एंड डिसऑर्डर्स नहीं बोल सकते, ये कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी के, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है? I have told you generally the placenta, generally the implantation takes place in the fundus region of the placenta. Most of the times, in most of the individuals, the implantation takes place in the fundus region, fundic region. Correct? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि implantation near the cervix हो या फिर implantation in the fallopian tube हो, ठीक है। इन सच केसेस दैट इज कॉल्ड एज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जहां पे वो यूट्रस को छोड़ के कहीं और जाकर लग रहा है, सर्विक्स के नीचे, सर्विक्स के पास लग रहा है, अगर सर्विक्स के पास जाकर वो इम्प्लांट हो गया, सो इन दैट पर्टिकुलर केस द प्लेसेंटा विल कंप्लीटली स्टार्ट डेवलपिंग नियर द सर्विक्स, ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा है कंप्लीटली सर्विक्स के पाथ को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब रास्ता ही नहीं है, बच्चा जाएगा कहाँ? जहां पे सर्वाइकल कैनाल है, दैट सर्वाइकल कैनाल इज आल्सो फिल्ड विद म्यूकस प्लग, ठीक है। हमने बोला था कि म्यूकस प्लग इज एसोसिएटेड विद द प्रोजेस्टेरॉन इज एसोसिएटेड विद थिकनिंग द म्यूकस। जो सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल में हमेशा म्यूकस होगी बेटा, बट डिफरेंस ये है कि म्यूकस कभी थिक होगी, म्यूकस कभी थिन होगी। ये थिन म्यूकस इज ड्यू टू ईस्ट्रोजन, थिक म्यूकस इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। अभी का टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। तो अभी दिमाग में सिर्फ एक कीड़ा छोड़ा है, तो उसको थोड़ा सा हो सके तो याद कर लो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ओके। सो सम बेसिक abnormalities which can lead to complications, which can lead to C-section. आजकल तो चलो C-section has become a business, ठीक है। Even if पहली चीज तो ये है, एक तो औरतें डर जाती है कि नहीं मेरे को I really can't go through that hell lot of pain, so they have found out a very easy alternative. But you know, conventionally बात करो, medically बात करो, physiologically बात करो, normal delivery is the most appropriate and the most best type of delivery. C-section में specifically it is not really advisable. एक जमाना था जब C-section नहीं था, तब क्या डिलीवरी नहीं होती थी, कैसे गांव साइड में कैसे डिलीवरी होती थी। If you know the story of for me, absolutely I will use the word the great. If you know the story of the great सिंधु ताई सपकाळ, ये आपको अगर स्टोरी पता है, जब मैं उनका नाम लेता तो भी मेरे को गूज़बम्स आते हैं। Absolutely heroic personality is that particular lady. अब उन लेडी के बारे में बोलने का रीजन ये है कि उन्होंने तो डिलीवरी कहाँ पे दिया था? She delivered her child in a cowshed, right? And she used a stone to cut the umbilical cord. देखो बेटा, जब तक umbilical cord कट नहीं करते, umbilical cord कट करने के लिए भी आपने अगर कोई पार्चुरेशन का वीडियो देखा होगा, तो फर्स्ट दे विल क्लैम्प एंड देन दे विल कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। क्यों? यहाँ पे भी देयर इज अ रीजन। क्लैंपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। क्लैंपिंग दोनों साइड से क्लैंपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और बाद में कट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी बच्चा तो बाहर आ गया, चलो कट कर देते हैं, है ना। ऐसे जंगलात जानवर जैसे कट करते हैं क्या? नहीं करते। स्पेसिफिकली दी अम्बिलिकल कॉर्ड तो दोनों तरफ से ऐसे सीजर से क्लैंप किया जाता है, ठीक है, टू रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो, ठीक है। बिकॉज अभी तक ब्लड कनेक्शन तो एस्टैब्लिश्ड है ना, ब्लड कनेक्शन तो एस्टैब्लिश्ड है, बीच में से कट कर दिया, यहाँ से फीटस का भी ब्लड फ्लो होते रहेगा, वहाँ से मैटरनल ब्लड भी फ्लो होते रहेगा। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड, बिकॉज ऑफ द हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन, देयर माइट बी डैमेज, देयर माइट बी फेटल कंडीशन फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स। सो
तो पहले हम क्लैंप करते हैं, ठीक है। क्लैंपिंग से क्या होता है, इधर से ब्लड सप्लाई रुक जाता है, इधर से ब्लड सप्लाई रुक जाता है, दोनों तरफ से ब्लड सप्लाई रुक गई, इट इज टेम्पररीली हॉल्टेड। उसके बाद इट इज वेरी इजी टू कट, बिकॉज यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गया, स्टैग्नेंट ब्लड आ गया दोनों के बीच में। अभी स्टैग्नेंट ब्लड को कट करेंगे तो देयर इज नो डैमेज, मैक्सिमम ब्लड लॉस नहीं होगा, ठीक है। और विद इन 3 days दैट स्मॉल क्लैंप ऑटोमेटिकली फॉल्स ऑफ, ठीक है। उसको खींचते नहीं है, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते, ऑटोमेटिकली वो डिजेनरेट होके सूख के गिर जाता है, ठीक है। सो आई डोंट नो ये सब चीजें मैंने आपको क्यों बताया, बट आई वांटेड यू गाइस टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। some disorders with respect to some abnormalities which will lead to C section। आजकल मैंने वही बताया आपको कि it is become a business absolutely, ठीक है। पहले तो नॉर्मल डिलीवरी करते थे लोग, कैसे लोगों गांव साइड में तो कैसे डिलीवरी करते थे, ठीक है। बट absolutely the condition was the health of the child was absolutely better। अब तो it has become a fashion, ठीक है, मैं very honestly बोलूंगा। So let's go ahead and talk about what are the complications with respect to placenta which might lead to the chances of C-section या cesarean section, ठीक है। So let's talk about the complications due to placenta। मैंने बताया ये एक्स्ट्रा है, complications due to placenta। एक होता है placental abruption, okay। First complication is placental abruption। ओके, अब placental abruption में हो क्या रहा है, बेसिकली placental abruption is associated with there is some damage to the blood vessels, damage to the fetal blood vessel, है ना। पहले के जमाने में कोई मूवीज वगैरह देखा रहेगा, अगर लेडी प्रेग्नेंट है और हस्बैंड को पता चलता है कि इस ये लेडी के पेट में तो पेट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, बट बोलते हैं ना हिंदी मूवीज में कि ये लेडी के पेट में तो लड़की है, तो ऐसा बहुत ऐसे मस्त लाउड मेलोड्रामेटिक म्यूजिक बजती है और जो क्रूअल फादर होता है वो ऐसे लात मार देता है फीटस पे। सो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, इसको मार दे, मैं इसको मार दे वरना मैं मार दूंगा, और ऐसे लात मार देता है, ठीक है। सो दैट इज अ मैकेनिकल इंजरी। एंड इफ मदर, ये तो एक कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई टाइप की मैकेनिकल इंजरी अगर हो गई, ठीक है, फिसल के गिर गई, सो दैट मैकेनिकल इंजरी की वजह से दी फीटल ब्लड वेसल्स आर डैमेज। अगर फीटल ब्लड वेसल्स बर्स्ट होती है, सो दैट कंडीशन इज रेफर्ड टू एज प्लेसेंटल अब्रप्शन। सो फीटल ब्लड वेसल के टूटने की वजह से द एंटायर blood gets flowing in throughout in the fetus and throughout in the amniotic sac। तो ये एक placental abruption is one particular complication। दूसरा complication ये जो है that is called as placenta previa। placenta previa, तो placenta previa में हो क्या रहा है बेटा, the placenta blocks the birth canal। Okay, I told you if the placental development is near somewhere down the line near the cervical region, तो वो पूरा cervical canal को block कर देगा, ठीक है। So in that particular case there is absolutely no particular alternative but a C-section, ठीक है। So placenta previa, ठीक है। Apart from that there is one more जो बहुत कॉमन है which is called as fetal distress syndrome। fetal distress syndrome, ठीक है। fetal distress syndrome is referred to जो umbilical cord है, that umbilical cord absolutely gets around the neck of the fetus and the death can be due to strangling, ठीक है। strangling गला दबाने से जो मौत हो सकती है। so during अगर normal delivery हम करें तो maybe the fetus might die, okay, due to strangling। so that is referred to as fetal distress syndrome or FDS,
ठीक है, these are some complications with respect to placenta, okay, which you need to remember, only remember, okay, as a general information. Very clearly understood बेटा, ठीक है. So इसके अलावा let's go ahead and now talk about यहाँ पे हम प्लेसेंटा के केस को रेस्ट करते हैं, खत्म. ठीक है, अब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो गया है. नाउ स्लोली एंड स्टेडीली द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू जंप इन, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जेस्टेशनल पीरियड. ठीक है, so let's go ahead and talk about that. फटाफट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है एनसीईआरटी में जितना हम दिया है उतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है, जितना एनसीईआरटी में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको स्पेसिफिकली नोट्स पे पढ़ाऊंगा. ठीक है, मैंने आपको नोट्स पे लिखवाया है, वीक वाइज डेवलपमेंट भी मैंने आपको लिखवाया है, दैट इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. बट अगर मैं मंथ वाइज डेवलपमेंट की बात करूं तो एनसीईआरटी में मंथ वाइज डेवलपमेंट है जहां से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, वो भी 3-4 लाइन में लोगों ने सम अप कर दिया है. ठीक है, so I will also definitely put up separate recorded videos for your NCERT revision. So let's see how much is it helpful for you guys. Okay, so chalo go over. Let's go ahead and talk about the next topic, that is embryonic development. इधर ही खत्म करते हैं, मेरे को सेपरेट लेक्चर नहीं बनाना इसके लिए, इसलिए मैं यहाँ पे ही खत्म कर रहा हूँ. Within 10 minutes we'll finish that. Okay, so now we need to understand something called as gestational period. Gestational period is the time taken for the fetal development, embryonic development. The time taken for the fetal development. ठीक है, तो जेस्टेशनल पीरियड को अगर मैं मंथ्स में लिखूं तो इट इज 9 मंथ्स. हम बात करते हैं 9 मंथ्स 10 डेज. ठीक है, 9 मंथ्स 10 डेज divided into 3 trimesters. ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है. बट अगर मैं इस चीज की बात करूं बेटा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि एग्जैक्ट डे बताओ, एग्जैक्ट कैलकुलेटेड डे बताओ, सो इट इज 280 डेज. ठीक है, सो इट इज स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट इफ यू हैव टू काउंट कि प्रोबेबल डेट क्या होगा. जनरली हम बोलते हैं ना प्रेगनेंसी की जो प्रोबेबल डेट हमको डॉक्टर बताता है कि इस डेट पे शायद डिलीवरी हो सकती है, तो इसके अराउंड 2-3 दिन पहले आपको खुद आकर यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा. ठीक है, सो फ्रॉम इट इज 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फ्रॉम द लास्ट मेंसेस. ठीक है, और इट इज 266 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, अब जब डॉक्टर आपको डॉक्टर आपको पूछेगा, तो डॉक्टर आपको ये तो नहीं पूछेगा ना फर्टिलाइजेशन कब हुआ था. डॉक्टर आपको ये तो नहीं पूछेगा ना कि पर्सनल बातें तो नहीं पूछेगा ना, है ना, कि तीर कब छुड़ा था, कमान से तीर कब छूटी थी. ये तो डॉक्टर नहीं पूछता ना. ये तो स्पेसिफिक हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें हैं, है ना. और ना ही कोई हस्बैंड वाइफ बोलेगा कि हाँ वी ट्राइड एट 2nd of October, then again we tried at 7th of October, then again we tried at 27th of October. हम ये सब मुहूर्त, ग्रह दोष, ये सब देखकर हम लोग ट्राई करते हैं. ये सब तो बकवास चीजें नहीं, बातें होंगी. ये सब बकवास चीजें हम ही बात करते हैं, आप और मैं ही बात कर सकते हैं. ठीक है, so specifically what doctor will ask you is the last menses. When did you have your last periods?
ये डॉक्टर पूछेगा आपको, है ना। उसके बाद स्पेसिफिकली हम ये बोलते हैं ना कि लेडी विल मिस द पीरियड्स, राइट। एक मंथ मिस हो गया, सेकेंड मंथ मिस हो गया, तो तब जाकर थोड़ा सा इंडिकेशन लगता है कि अब जाकर जो तीर छुटी थी वो बराबर एम तक पहुंची है, ठीक है। सो कमान से जो तीर छुटी थी वो बराबर एम तक पहुंची। ओके, सो बोलने का मतलब ये है यू हैव टू कैलकुलेट, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 280 डेज, दिस इज अगेन अ प्रोबेबल डेट, ठीक है। सो इट इज 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंसेस। तो डॉक्टर आपको ये पूछेगा कि लास्ट पीरियड्स कब थे, ठीक है। तो यू हैव टू टेल द डेट, फ्रॉम दैट डेट, काउंटिंग फ्रॉम दैट डेट 280 डेज विल बी काउंटेड, ओके। और वो डॉक्टर आपको बताएगा ये है डेट, सो 23 अक्टूबर इज द डेट, प्रोबेबल डेट। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि बर्थडे 23 अक्टूबर को भी हो सकता है, 24 अक्टूबर को भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है ऑन दैट लेवल, इवन इफ द डिलीवरी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। और इट इज 266 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कॉमन सेंस, लास्ट मेंसेस, ठीक है। लास्ट मेंसेस के बाद हम मानते हैं ना कि लास्ट मेंसेस होने के बाद 14 डे के बाद होता है अपना फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो 280 डेज में से 14 डेज माइनस कर दो, मतलब पास सोच लो कि 14 डेज हो गया और हमको पता है शायद डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। सो 280 डेज फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और 266 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मैंने 14 माइनस किया है बिकॉज वो 14th डे पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा, ठीक है। सो मेंसेस से लेकर फर्टिलाइजेशन का डेट मैंने माइनस कर दिया, 14 डेज को माइनस करके यू गेट 266 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। Is that very clearly understood? So ये humans है जिनका gestational period is quite long, but there are several organisms, there are several animals also, जैसे हाथी, elephant, rhinoceros, जिनकी gestational period is comparatively huge, absolutely for 2 years. एक हाथी को डेवलप होने के लिए it takes approximately 2 years, ठीक है, मतलब more than 600 days. Same is the case with the rhinoceros. That is why these organisms are very endangered. इसीलिए ये organisms, क्योंकि इन organisms की propagation है ना, reproduction is very compromised, embryonic development is very compromised. Hence these organisms are absolutely endangered. ठीक है बेटा, तो gestational period आपको यही याद रखना है। हो सके तो आप gestational period कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको बता दिया है ना, अगर आपको अंदाजा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये होमवर्क करके देखना, ठीक है, एक ट्राई करके देखना बेटा, ओके। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेट्स हो कि ऐसा क्वेश्चन ना आए, ठीक है, बट अगर थोड़ी सी अप्रोच लानी है, डॉक्टर लाइक अप्रोच लानी है, तो थोड़ा सा ट्राई कर लो घर पे बैठकर, है ना। क्या देखना है, कुछ भी तो नहीं करना है, कैलेंडर देखना है, थोड़ी सी एप्टीट्यूड तो अच्छी हो जाएगी, है ना। तो इमेजिन कर लो कि डेट ये है कि फाइंड द डेट ऑफ डिलीवरी, फाइंड द डेट ऑफ डिलीवरी इफ find the date of delivery if the last menses was on चलो मेरा बर्थडे लिख देता हूँ, लास्ट मेंसेस was on 19th January 1993। लेट्स गो। अगर ये है तो चलो बताते हैं लास्ट मेंसेस अगर ऐसा था तो कैलकुलेट दी डेट ऑफ डिलीवरी। चलो ये आप घर पे से कर सकते हो, है ना। सो कैलकुलेट किया और के साथ चाहिए मेरे को, ठीक है। सो अगर आंसर मिल जाता है तो मेरे को भी बताना, ठीक है। कहाँ पे बताओगे, क्लासरूम में, ठीक है। दैट्स इट विद दी gestational period. Now quickly let's go ahead and talk about the month-wise development of the embryo. इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, because ये NCERT में दिया है, but a lot of students while reading they will ignore this point, ठीक है। So quickly let's go ahead and talk about the month-wise development of the fetus. month-wise development ही पढ़ा रहा हूँ, week-wise development की जरूरत नहीं है, ठीक है। So week-wise development में भी फर्स्ट वीक तक इम्प्लांटेशन हो गया, सेकेंड वीक तक गैस्ट्रुलेशन हो जाता है,
ठीक है, सेकेंड वीक तक गैस्ट्रुलेशन हो जाता है, स्लोली एंड स्टेडीली द ऑर्गन स्टार्ट फॉर्मिंग। फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट कंप्लीट हो जाता है एंड द हार्ट इज एब्सोल्युटली फंक्शनल। सो द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन टू डेवलप इन योर बॉडी इज हार्ट। ठीक है बेटा, चलो मंथ वाइज डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। Now this is purely based on NCERT. Literally रट्टा मार लो, बट रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है बेटा, लॉजिक लगता बस, ठीक है, और इंटरेस्ट लगता। मंथ वाइज डेवलपमेंट, मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। Okay, so now let's go ahead and talk about the first month. फर्स्ट मंथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ, दैट इज हार्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हार्ट इज फॉर्म, मतलब सर्कुलेशन सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड कंप्लीटली। ठीक है, हार्ट फॉर्म होकर फंक्शन भी करने लगता है बेटा। सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म, हाथ पैर दिखने लगते हैं, बन गए हैं, ऑलमोस्ट बन गए हैं, दिखने लगते हैं बेटा। ठीक है, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म। थर्ड मंथ में, ओके, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज फॉर्म। एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म तो हो गया, बट मेल है या फीमेल है ये पता नहीं चलता। ठीक है, अनलेस एंड अंटिल यू डू अ कैरियोटाइपिंग ऑफ द चाइल्ड, मेल फीमेल ये पता नहीं चलता। मेल फीमेल आपको ऑन एवरेज 7th मंथ में पता चलता है, बिकॉज़ ये कंप्लीटली डेवलप, हम बोलते हैं ना, टेस्टिस डिसेंड होता है बाय द 7th मंथ। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज फॉर्म्ड, मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज फॉर्म्ड। ओके, फोर्थ मंथ नहीं है बेटा एनसीईआरटी में, डायरेक्टली इन लोग ने 5th मंथ दिया है। फोर्थ मंथ में ऐसे कुछ हॉलमार्क स्टेप नहीं हो रहा। ठीक है, डायरेक्टली 5th मंथ में हो क्या रहा है बेटा, 5th मंथ में वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन आया हुआ था, दैट फर्स्ट मूवमेंट, बच्चा लात मारा ये जो आप बोलते हैं, ये जो आपने सुना है ना कि बच्चा लात मार रहा है, दी बेबी इज किकिंग, फुटबॉलर बनेगा क्या, है ना, तो ये सब चीजें जो, आई डोंट नो, इट माइट साउंड फूलिश ऑन द वीडियो, बट आई कांट हेल्प इट। अब तुम लोग उनकी इंटरेस्ट और ये बना के रखने के लिए सब करना ही पड़ता है ना, जोकर बनना ही पड़ता है बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, है ना, सही विच वेज। सो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, दिस इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो इधर। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एब्सोल्युटली सीन इन द 5th मंथ and appearance of the hair. First movement and the appearance of the hair is seen in the 5th month. ठीक है बेटा, so 5th month के बाद directly they have the 6th month. 6th month में body covered by hair completely, body hair develop हो जाते हैं, body covered by hair। और एक चीज हो रही है यहाँ पे, eyelids ओपन। अब ये पूछ सकते हैं कि आईलिड्स ओपन कब हो रहे हैं, अराउंड दी 6th मंथ। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ दी हेयर, ठीक है, ऑफ दी 5th मंथ। अब धीरे धीरे टाइनी बॉडी में भी हेयर डेवलप होने लगते हैं, हेयर फॉलिकल्स ऑफ द बॉडी आर एक्टिवेटेड, दे स्टार्ट डेवलपिंग एंड दी आईलिड्स ओपन। ठीक है, अराउंड दी 6th मंथ, वेरी क्लियर। और 9th मंथ में तो 9th मंथ में तो आपको पता ही है ना, 9th मंथ में क्या होता है, वैक वैक। 9th मंथ में क्या हो रही है बेटा, 9th मंथ में the fetus is fully developed। Okay, so that is all with respect to embryonic development। इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, नहीं आता है मोस्ट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो। अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज आपको एमबीबीएस में तो ये सब्जेक्ट आएगा ही, एम्ब्रियोलॉजी करके एक सब्जेक्ट आएगा ही, तो तब तो आपको पूरा पढ़ना ही है।
ठीक है, बट फॉर नाउ कंसाइजली वी ओनली हैव टू कंसंट्रेट ऑन दीस थ्री, ठीक है। तो जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको हमने बहुत स्ट्रक्चरली यहाँ पे लिख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई नो यू कैन रिमेंबर दिस, आई नो यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है, यू ऑल्सो कैन रिमेंबर दिस, बट आपको कंफ्यूजन 5th और 6th मंथ में होगा, ठीक है। रिमेंबर 4th मंथ दिया ही नहीं है तो 4th मंथ हमको कंसिडर ही नहीं करना, ऑप्शन में आया तो 4th मंथ जो है उसको कैसे भी करके निकाल दो, ठीक है, रूल आउट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। यू विल डेफिनेटली बी कंफ्यूज्ड एट द 5th एंड 6th, ठीक है। तो 5th एंड 6th में आपको यही याद रखना है कि 5वें महीने में बच्चा लात मार रहा है, ठीक है, और 6th मंथ में बच्चा आंख खोल रहा है, तो आंख खोलने से पहले बच्चा लात मार देता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर लो बेटा, कुछ तो ऐसे झोल बनाओ और याद कर लो, ठीक है। So there we finally finish up our topic for embryonic development. अब हमने बच्चा पूरा, इधर देखो, बच्चा पूरा डेवलप कर लिया है ना। अब हो गया है बड़ा सा पेट, ठीक है, अब हो गया है, अब हॉस्पिटल में भर्ती करने की बारी आ गई है, ठीक है। लेडी जिसको हमने इमेजिनरी लेडी जो हमने कंसिडर किया था, ठीक है, तो अब हम बच्चे को, अब वो लेडी को हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम बच्चे का डिलीवरी करवा देंगे और फिर पेड़े बैठेंगे, खुशियां मनाएंगे, यस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। सो इससे पहले थोड़ी सी है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज जो है ना, आई डोंट फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल टू से दिस, बट देन अब सब बोलते तो मेरे को भी बोलना पड़ता है, थोड़ा सा लाइक शेयर और कमेंट ये कर लो, ठीक है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आई विल आल्सो बी फिल्ड अप विद दैट zeal to make the lecture better and better and better, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।